السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين المكين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين الشاكرين الذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ منبر شریف پر علماء کرام کا حسین قافلہ موجود ہے۔ جتنے علماء کرام کا نام آپ نے اشتہار کے ذریعے پڑھا، اعلانات کے ذریعے سنا، وہ سارے علماء کرام آپ کے بیچ تشریف لا چکے ہیں۔ انشاءاللہ ایک بعد دیگرے سبھی علماء کرام سے آپ ملاقات کرنے کا شرف حاصل کریں گے۔ منبر شریف پر نقیب اہل سنت ادیب شہیر مسیحا الفاظ، ماہر زبان و قلم حضرت مولانا حسن رضا اطہر بکاروی صاحب قبلہ کی خوبصورت اناؤنسری میں آپ حضرات تر و تازہ اور بیدار ہیں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ اخیر وقت تک آپ حضرات بیدار رہیں گے۔ مجھ سے قبل حضرت قاری نثار اختر نظامی صاحب قبلہ کی خوبصورت شاعری آپ تک پہنچ رہی تھی۔ ان کے پڑھے گئے ہوئے اشعار کے ذریعے نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سن کر آپ اپنے دلوں میں مصطفیٰ پیارے کی محبتوں میں اضافہ فرما رہے تھے۔ دعا ہے رب قدیر نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھنے سننے سنانے کی برکت سے کل میدان محشر میں ہم سب کی بخشش عطا فرمائے۔ میرے بعد شاعر اہل سنت، جان نغمگی شان نغمگی، حضرت محترم انجینئر ارشد اقبال سیوانی صاحب قبلہ کی حاضری ہو چکی ہے۔ میرے فوراً بعد وہ آپ کے بیچ حاضر ہو گئے، اور پھر آپ کی نگاہیں اسی جلسے کے بیچ میں اس مقدس ہستی کی زیارت کریں گی جس کے خاندان کے توسط سے، جس کے نسل کے توسط سے میرے امام نے یہ پیغام دیا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ الحمدللہ وہ ذات آپ کے بیچ تشریف لانے والی ہے، یعنی پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ سید شاہ گلزار اسماعیل واسطی رزاقی، وہ تشریف لانے ہی والے ہیں۔ ان کے علاوہ دیگر خطبہ شورا کی حاضری ہوتی ہے۔ منبر شریف پر مخیر قوم و ملت، محسن قوم و ملت حضرت مولانا غلام مرتضیٰ صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں۔ ان کے علاوہ جتنے بھی علماء کرام یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں وہ وہابیت کے خود ساختہ قبہ و مینار کو مسمار کر کے مسلک اعلیٰ حضرت کی روشنی کا انتظام کرتے ہیں۔ وہ تمام تر علماء کرام آپ کے بیچ تشریف رکھتے ہیں۔ آپ تمامی حضرات ان علماء کرام کے چہروں کی زیارت کر کے اپنے نگاہوں میں تازگی بخشیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم مراد درود شریف کا نغمہ گائیں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام اہل سنت حضور اعلیٰ حضرت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے،
ताजे सर बनते हैं सैयारों के, मुजरिमों चश्मे तबस्सुम रखो, मुजरिमों चश्मे तबस्सुम रखो, फूल बन जाते हैं अंगारों के, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों की। अल्हम्दुलिल्लाह, माहिर जुबानो कलम हजरत हसन रजा अतहर साहब किबला आपके बीच ये पैगाम दिए कि आप जब तक इस जलसे में बैठे बिल्कुल यानी मुकम्मल जिम्मेदारी और बेदारी के साथ बैठा करें, इसलिए कि आज के हालात में जो हो रहे हैं वो आप सोशल मीडिया के जरिए देख ही रहे हैं। जलसा करने कराने का एक मकसद होना चाहिए, जलसा करने कराने का सिर्फ ये मकसद नहीं होना चाहिए कि हम जलसे में जाएंगे, कौन से आलिम कौन से शायर आ रहे हैं उनको देखेंगे, उनको सुनेंगे, फिर हमारी जिंदगी की वही बेराह रवि अगर उसमें तब्दीलियां नहीं आए तो फिर जलसे सुनने सुनाने का कोई फायदा नहीं है। मेरे प्यारे, जलसा सुनने के बाद, जलसा करने के बाद, जलसा कराने के बाद आपके अंदर तब्दीली आनी चाहिए। जलसा सुनने के बाद, जलसे में उलमाए किराम के तकारीर व बयानात सुनने के बाद आपके अंदर तब्दीलियां आनी चाहिए, आपके अंदर बेदारी आनी चाहिए, आपके अंदर एक इनकलाब आना चाहिए और आपके अंदर कम से कम जलसा सुनने के बाद, उलमाए किराम के तकरीर सुनने के बाद वो वाला मिशन जरूर जागना चाहिए, जो मिशन, जो फिक्र जो है हमें जो है बरेली के इमाम रहती दुनिया में दे गए। हुजूर आला हजरत इरशाद फरमा गए, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद, ठीक हो नामे रजा। तकबीर, रिसालत, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। हज़रात, मैंने कुरान शरीफ की आयत तिलावत की है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आज का ये प्रोग्राम अल जामिअतुल इस्लामिया के यानी हवाले से दस्तारबंदी का हसीन मंजर भी आप मुलाहजा फरमाएंगे। यकीनन इन जैसे मदरसों के जलसों से हमें ये पैगाम लेना चाहिए कि हम अपनी जिंदगी में अपने बच्चे को कोई तालीम दे या न दे, लेकिन हर तालीम से पहले मुस्तफा जाने रहमत के किरदार की तालीम सिखा दे, ताकि हमारे बच्चे इंसानियत से करीब हो जाए, ताकि हमारा बच्चा एक मोहल्ले, एक समाज का जो है बावकार इंसान बनकर के जिंदगी गुजारे। रात मैं कहना चाहता हूँ, आज हमारे भारत में नर्सरी से लेकर के PhD तक की तालीम दी जाती है। हमारे भारत में तारीख की किताबें पढ़ाई जाती है, हमारे भारत में इत्तेहाद की तालीम दी जाती है, हमारे भारत में जो है यानी मोहब्बत की तालीम दी जाती है। मैं कहना चाहता हूँ, आज जो हमारे बच्चे जो है यानी स्कूल और कॉलेजों में तालीम हासिल करते हैं, आप उनके तालीमी मयार का जब जायजा लेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन स्कूलों में और इन कॉलेजों में हमारे बच्चों को जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू की जिंदगी पढ़ाई जाती है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जिंदगी पढ़ाई जाती है, यानी मौलाना मजहरुल हक की जिंदगी पढ़ाई जाती है, अफलातून की जिंदगी पढ़ाई जाती है। हज़रात, किस साइंसदान ने कितने दिन तक चांद पे कदम रखा, ये हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, हज़रात, हम अपने बच्चों को अरस्तू का फलसफा पढ़ाते हैं, हम अपने बच्चों को अफलातून की जिंदगी पढ़ाते हैं, हम अपने बच्चों को मौलाना अबुल कलाम आजाद की जिंदगी पढ़ाते हैं, हम अपने बच्चों को न्यूटन की थ्योरी पढ़ाते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, अरे मियाँ, हम अपने बच्चों को इन महापुरुषों की जिंदगी क्यों पढ़ाते हैं? तो आप कहोगे मौलाना साहब, हम अपने बच्चों को इन महापुरुषों की जिंदगी इसलिए पढ़ाते हैं ताकि बच्चे पढ़ेंगे जब इन महापुरुषों की जिंदगी तो हमारे बच्चों के सीने में मुल्क की मोहब्बत जाग जाएगी। तो मैं कहना चाहता हूँ, अरे मियाँ, अगर पढ़ना ही है और पढ़ाना ही है तो सबसे पहले हम अपने बच्चों को उस इंसान की जिंदगी क्यों नहीं पढ़ा देते हैं जिस इंसान की जिंदगी पढ़ाने के बाद हमारे बच्चों के सीने में मुल्क की मोहब्बत भी जाग जाएगी और सारी दुनिया के इंसानों का प्यार भी जाग जाएगा, जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आज से 1450 बरस पहले
نے पूरी दुनिया के लिए रहमत लिल आलमीन भी बना करके भेजा है और एक कायनात का एक अजीज रहबर भी बना करके भेजा है और फरमाया ए लोगों लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तहकीक के तुम्हारे लिए नबी की जिंदगी बेहतरीन नमूने अमल है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आखिरकार आमना के लाल का किरदार क्यों नहीं पढ़ाया जाता है? आमना के बेटे का किरदार क्यों नहीं पढ़ाया जाता है? मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी क्यों नहीं पढ़ाई जाती है? इसलिए नहीं पढ़ाई जाती है। आमना के बेटे का किरदार इसलिए नहीं पढ़ाया जाता है कि हजरात ये मीडिया जानती है, ये गूगल बनाने वाले, ये यूट्यूब बनाने वाले जानते हैं कि हम तो आमना के लाल के किरदार को रोकने के लिए मिशन चलाए हैं। हम तो मीडिया इसलिए बनाए हैं कि कैसे मुसलमानों को कुरान के तालीम से रोका जाए, कैसे मुसलमानों को नबी के किरदार के तालीम से रोका जाए। यही वजह है यार पूरी दुनिया के मुसलमान यहूदियों की इस साजिश के तहताबे के तहत तैयार करके हज़ार हर इंसान कुरान की तालीम से दूर है, नबी के किरदार के तालीम से दूर है। आप कहोगे मौलाना साहब हम कुरान की तालीम नहीं पढ़ते हैं इसलिए कि हमारे पास कुरान पढ़ने के लिए फुर्सत नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ जो साहब दैनिक जागरण पढ़ने के लिए फुर्सत है, दैनिक भास्कर पढ़ने के लिए फुर्सत है, लाइव टेलीकास्ट चैनल देखने के लिए फुर्सत है, लेकिन खुदा की कसम जिस कुरान ने मीडिया की बुनियाद डाली, कहा कि देखो ये सारी खबरें जो तुम पढ़ते हो, खुदा की कसम ये सारी खबरें अपनी जगह झूठी हो सकती है, लेकिन कुरान ने जो तुझे बता दिया वो कल भी सच्चा था, वो आज भी सच्चा है और रहती दुनिया तक सच्चा होकर रहेगा। लेकिन हम कुरान की तालीम पढ़ते नहीं है, हम मुस्तफा जाले रहमत के दीन के किरदार की तालीम पढ़ते नहीं है, हम मुस्तफा के किरदार की तालीम पढ़ते नहीं है। यही वजह है कि हमारे घर में बहारें नहीं है, यही वजह है कि हमारे बच्चे दुनियावी एतबार से भी हर एतबार से नाकाम, दीनी एतबार से तो नाकाम ही है, लेकिन दुनियावी एतबार से भी दीनी प्लेटफार्म में नहीं जमा होने की वजह से हमारे बच्चे नाकाम हो। तकबीर। हो सके तो आप खड़े हो जाएं, आने वाली शख्सियत कोई मामूली शख्सियत नहीं है। मुफक्किर इस्लाम, खतीब आलम इस्लाम हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अलीवी साहब कलकत्वी मिंबर नूर पे जलवाबार हो रहे हैं। आइए सब लोग मिलकर इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान इल्म कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। माशाअल्लाह सब लोग तशरीफ रखें। इंटरनेशनल खतीब, खतीब आज़म हिंदुस्तान, शहजादे हुजूर अजीजुल्लाह मजहरी साहब किबला आपके बीच तशरीफ ला चुके हैं। यकीनन मेरे बाद उनका एक कुर्बत खिताब आपके बीच नश्र होगा, इसलिए आप तमामी हजरात इन आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के लिए एक बेदारी वाला माहौल कायम कीजिए। जरा हाथों को उठा के बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। हजरात मैं कहना चाहता हूँ हम अपने बच्चों को इन महापुरुषों की जिंदगी पढ़ाते हैं, लेकिन हजरात आखिर वजह क्या है? वजह यह है कि ये मीडिया जानती है, ये गूगल बनाने वाले, ये यूट्यूब बनाने वाले जानते हैं कि हम तो आमना के लाल के किरदार को रोकने के लिए मिशन चलाए हैं। हम तो मीडिया इसलिए बनाए हैं कि कैसे मुसलमानों को नबी के किरदार के तालीम से रोका जाए, कैसे मुसलमानों को कुरान के तालीम से रोका जाए। अगर आपको नहीं पता है तो मुझसे सुनिए, इस्लाम बड़ी तेजी के साथ 23 ईयर्स यानी हुजूर की मुकम्मल जिंदगी 63 साल है, 63 साल हुजूर की मुकम्मल जिंदगी है, लेकिन 40 साल के बाद मुस्तफा करीम ने नबूवत का ऐलान फरमाया। 40 साल के बाद जो मुकम्मल जिंदगी तबलीगी जिंदगी हुजूर की है वो 23 ईयर 23 साल है। 23 साल के अंदर पूरी दुनिया में इस्लाम फैल गया। यहूदियत ऐसा हैरान है, पूरी दुनिया हैरान है कि वो कौन ऐसा इंसान है जिसने तमामी मुखालफत के बावजूद पूरी दुनिया में इस्लाम के धमक को पहुंचा दिया है, पूरी दुनिया के इस्लाम के कोने, पूरी दुनिया के कोने कोने में इस्लाम के पैगाम को पहुंचा दिया है। लोगों ने कहा कि हाँ हाँ अरब की सरजमीन में एक ऐसा इंसान है जो अब्दुल मुत्तलिब के घर में पैदा हुआ है, आमना की गोद में पैदा हुआ है, जिसने थोड़ी सी मुद्दत में पूरी दुनिया में सच्चाई के लोगों को बनवा दिया है। जो भी उससे मिलता है उसी का दीवाना हो जाता है, जो भी उससे मिलता है उसका शैतान बने बगैर नहीं रहता है, जो भी उससे एक मर्तबा मिल जाता है फिर वो उसी का हो जाता है। हज़रात फिर यहूदियों ने एक प्लानिंग की कि आखिर मुसलमानों को कैसे रोका जाए, कुरान की तालीम से कैसे रोका जाए, नबी के किरदार के तालीम से रोका कैसे जाए। तो कुछ लोगों ने कहा कि हमारे पास ताकत है, हम अपनी ताकत के बलबूते मुसलमानों को रोक लेंगे, मुसलमानों के बढ़ती तादाद को रोक लेंगे। लोगों ने कहा कि नहीं नहीं ये तुम्हारी गलत सोच है, इसलिए कि तुम्हें मालूम नहीं है पूरी दुनिया में अगर किसी इंसान के पास सबसे अच्छा किरदार है
तो मुसलमानों के पैगंबर के पास है, जिसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। और पूरी दुनिया में अगर किसी इंसान के पास कोई सबसे अच्छी किताब, धार्मिक किताब, जिस किताब में माँ की गोद से लेकर के कब्र के गोद तक सारे दस्तूर लिखे गए हैं, अगर वो किताब किसी के पास है तो मुसलमानों के पास है, जिसे कुरान अज़ीम कहते हैं। हज़रात, लोगों ने कहा कि आखिर फिर मुसलमानों की बढ़ती तादाद को रोका कैसे जाए। कहा कि देखो, क्या तुझे पता नहीं है कि मुसलमान जब रास्ता चलता है कहता है हमारे नबी कैसे रास्ता चले थे, हमें भी वैसे रास्ता चलना चाहिए। मुसलमान जब खाना खाता है, मुसलमान जब खाना खाता है कहता है हमारे नबी जैसे खाना खाए थे, हमें भी वैसे खाना खाना चाहिए। मुसलमान अपनी बेटी से कहता है सुन मेरी बेटी, नबी की बेटी फातिमा जैसे जिंदगी गुजारी है, तुम्हें भी उसी के निहर पर जिंदगी गुजारनी है। यानी मुसलमान जब भी कोई काम करता है तो अपने आलिम से पूछता है कि कुरान में इसका तज़किरा है कि नहीं है, हदीस में इसका तज़किरा है कि नहीं है। हज़रात, उन्होंने कहा कि मुसलमानों को रोकने के लिए यह काम करना होगा कि मुसलमानों के हाथ से, मुसलमानों के यहाँ से, मुसलमानों के ज़हन से कुरान की तालीम को खत्म कर देना है, नबी के किरदार के तालीम को खत्म कर देना है। क्या तुझे पता नहीं है कि यही मुसलमानों के पैगंबर हैं जिन्होंने इब्तिदाई इस्लाम में एक नारा दिया था, जो लोग शराब पी रहे थे, जो लोग शराब को शौक से पसंद करते थे, जब ये ऐलान हो गया, जब खुदा का पैगाम आ गया शराब पीना हराम है, अब लोग मुस्तफा करीम के इस ऐलान को सुन करके शराब को छोड़ना शुरू कर दिए। अर्थात किसी के घर में अगर शराब के मटके रखे हुए थे, वो लोग शराब के मटके को अपने घर से निकाल करके बाहर फेंकना शुरू कर दिए। किसी के घर में अगर शराब के, किसी के घर में, किसी के दस्तरखान में अगर शराब की बोतल सजी हुई है, जब मुस्तफा करीम के जरिए ये ऐलान हो गया, ऐ लोगों कल से कोई शराब मत पीना, अल्लाह की तरफ से मुमानियत है, अल्लाह ने मना कर दिया है। अर्थात जो लोग शराब पी रहे थे वो लोग शराब को जो है बाहर निकाल करके फेंकना शुरू कर दिए। हैरत की बात तो ये है कि जो लोग शराब पी चुके थे, जब उन लोगों के कानों तक ये आवाज आई कि अब शराब पीना मना हो गया है, अब शराब पीना हराम हो गया है, तो वो लोग अपने मुंह के अंदर उंगलियां डाल डाल करके उल्टी करना शुरू कर दिए और दुनिया वालों को ये पैगाम देना शुरू कर दिए कि जिस चीज को मेरे मुस्तफा मना करके नापसंद कर दे, हम भी उसको नापसंद समझते हैं। जिस चीज को इसलिए मेरे प्यारे, कुरान की तालीम से अपने बच्चों को करीब किया जाए, नबी के किरदार के तालीम से अपने बच्चों को करीब किया जाए। आज मुसलमानों के यहाँ हर तालीम तो है, लेकिन हम अपने बच्चों को कुरान के तालीम से दूर किए हुए हैं, नबी के किरदार के तालीम से दूर किए हुए हैं। यही वजह है कि हमारे बच्चे हमारे लिए मुफीद नहीं हो रहे हैं, हमारे बच्चे फरमाबरदार हमारी वजह से नहीं हो रहे हैं। इसलिए कि हम अपने बच्चों को गैरों के तालीम से आगाह कर रहे हैं, गैरों के कल्चर से आगाह कर रहे हैं। आइए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कुरान की तालीम आज के डेट में लोगों का ये जहन बन चुका है कि कुरान हम क्यों पढ़ेंगे, बस कुरान हम उस वक्त पढ़ेंगे जब माँ मर जाए, जब बाप मर जाए, तो उसके इसाले सवाब के लिए हम कुरान खानी करेंगे। कुरान पढ़ना ये तो आलिम उलमा का काम है, कुरान पढ़ना ये तो मदरसे के उलमा का काम है, कुरान पढ़ना ये तो मस्जिद के इमाम का काम है। हम क्यों कुरान पढ़ेंगे? कुरान वो पढ़े जिसका चेहरा इस्लामी हो, कुरान वो पढ़े जो किसी मदरसे का मुदर्रिस हो, कुरान वो पढ़े जो किसी मस्जिद का इमाम हो। हमको कुरान पढ़ने के लिए जरूरत नहीं है। कुरान तो सिर्फ इसलिए उतरा है कि हम उसे नमाज का जरिया बनाएंगे, कुरान तो सिर्फ इसलिए उतरा है कि हम जो है उसे ईसाले सवाब का जरिया बनाएंगे, कुरान तो सिर्फ इसलिए उतरा है कि हम उसे फातिहा का जरिया बनाएंगे। बाकी लोगों को कुरान पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुरान को हमें उस वक्त याद आता है जब भूत और शैतान भगाने की बारी आती है। मैं कहना चाहता हूँ, ए भूत और शैतान भगाने के लिए कुरान पढ़ने वालों, चांद पे जाने की खबर दुनिया के और किसी किताब ने साइंटिस्टों को नहीं दी है। चांद पे जाने की खबर जिस किताब ने पूरी दुनिया के साइंसदानों को दी है, उसी किताब का नाम कुरान अजीम है, उसी किताब का नाम कुरान अजीम है। इसलिए तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने कुरान, फैजाने इल्म कॉन्फ्रेंस,
चांद पे जाने की खबर जिस किताब ने दुनिया के साइंसदानों को दी है वो किसी और किताब ने नहीं दी है, बल्कि यही कुरान अज़ीम ने दी है। लेकिन हमें हो क्या गया है कि हम कुरान की तालीम से दूर हो रहे हैं, हम नबी के किरदार के तालीम से दूर हो रहे हैं। अगर नबी अहले सुन्नत है, ये इनकी फिक्र बहुत अच्छी है, इनकी जुबान बहुत अच्छी है, इनका कलम बहुत अच्छा है। खुदा की कसम ये अपने अशार के जरिए आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आज मुसलमानों के बर्बादी की वजह क्या है। आज हमारी तादाद में किसी एतबार से कोई कमी नहीं है, लेकिन वजह क्या है कि हम दर दर मारे जा रहे हैं, हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लोगों के निशाने पर हम हैं। उसकी वजह यह है कि आज हम ये कामयाबी समझ रखे हैं, अच्छा मकान बना लिए हम कामयाब हो गए, अच्छा पैसा कमा लिए हम कामयाब हो गए, अच्छी शोहरत कमा लिए हम कामयाब हो गए, जबकि ये मुसलमानों का सेवा ले रहा है। मुसलमान कामयाबी इसको नहीं समझते हैं, बल्कि मुसलमान को कामयाबी उसको समझते हैं जो डॉक्टर इकबाल ने अपनी रहती दुनिया में ये पैगाम दे गए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। इसलिए हम हुजूर की जिंदगी को अपनाएं, हम हुजूर की सीरत पे अमल करें, हम हुजूर की सीरत को फॉलो करें, हम हुजूर की जिंदगी को फॉलो करें, हम कुरान की तालीम को फॉलो करें। खुदा की कसम अल्लाह ताला दुनिया में भी हमें कामयाबों का बयान फरमाएगा और आखिरत की भी कामयाबी हमारे मुकद्दर होंगे। इसलिए है मेरे प्यारे, हम अपने बच्चों को कुरान के तालीम से करीब करें, हम अपने बच्चों को नबी के किरदार के तालीम से करीब करें। हमारे बच्चे जब तक कुरान की तालीम से करीब नहीं होंगे, हमारे बच्चे जब तक नबी के किरदार के तालीम से करीब नहीं होंगे, उस वक्त तक हमारे बच्चे हमारे लिए फायदा मंद साबित नहीं हो सकते हैं। इसलिए कि ये उलमाए किराम है, इन उलमाए किराम की मौजूदगी में एक जुमला देना चाहता हूँ। यकीनन बच्चे जो है लेक्चर दूसरी जगह से सुनते हैं, लेकिन वो फॉलो अपने माँ बाप को करते हैं, वो अपने फॉलो अपने माँ बाप के कैरेक्टर को करते हैं। जाहिर सी बात है, जिस घर में जिसका बाप जिसकी माँ यानी 5 वक्ता बेनमाजी हो, फिर वो किसी मौलवी के पास जाए तावीज देने के लिए, मौलवी साहब तावीज दे दे मेरा बच्चा दीनदार हो जाए, ये कभी नहीं हो सकता है। अगर अपने बच्चे को दीनदार बनाना है, पहले उसके वालिदैन को दीनदार बनना होगा, पहले उस बाप को यानी दीनदार बनना होगा। जाहिर सी बात है, जो बच्चा अपनी निगाहों के सामने अपने बाप के जो है तमाम तर हरकतों सकनात को अपने निगाहों के जरिए और अपने ज़हन के जरिए कैद कर रहा है, फिर वो ये सोचे कि मेरा बच्चा एक मुआशरे का अच्छा इंसान बन जाए, ये कभी नहीं हो सकता है। हज़रात तरबियत की भट्टी से गुजारने के बाद, इसलिए कि हज़रात ये उलमाए किराम हैं, इनकी मौजूदगी में एक जुमला आज जो है हम जैसे लोगों का ये ख्याल हो चुका है कि बच्चे अगर किसी मदरसे से तालीम पा रहे हैं, बच्चे अगर किसी कोचिंग सेंटर में तालीम पा रहे हैं, बच्चे अगर किसी खास यानी शख्स से तालीम पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि तालीम के साथ साथ हमें जो है मुफ्त में तरबियत हासिल हो जाएगी। नहीं, तालीम के साथ साथ जो है मुफ्त में तरबियत हासिल नहीं होती है। जैसे लिखना एक अलग हुनर है, पढ़ना एक अलग हुनर है। ये कोई जरूरी नहीं है कि जिसकी जो है जो अच्छे तरीके से पढ़ना जानता हो उसे अच्छे से लिखने का सलीका आ जाए। नहीं, बल्कि पढ़ने के साथ उसको जो है लिखने के लिए एक्सरसाइज करने की जरूरत है, लिखने के लिए मशक करने की जरूरत है। जो जितना लिखने में एक्सरसाइज और मशक करने में यानी महारत हासिल रखता है, उसकी तहरीर उतनी अच्छी होती है। तो मालूम हुआ कि पढ़ना एक अलग चीज है, लिखना एक अलग चीज है, दोनों को आप एक चीज नहीं कह सकते हैं। उसी तरीके से तालीम एक अलग चीज है, तरबियत एक अलग चीज है। तालीम के जरिए तरबियत हासिल नहीं होने वाली है। तालीम के साथ साथ हमें मुस्तफा जाने रहमत की सीरत पढ़नी होगी, हमें बुजुर्गाने दिन की सीरत को पढ़ने की जरूरत है, हमें साहबा इकराम की सीरत को पढ़ने की जरूरत है। तभी जाकर के हमारे अंदर तालीम और तरबियत का जो है माहौल पैदा होगा। हमारे अंदर तालीम और तरबियत आने के बाद हम मुआशरे का एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करेंगे। जरा देखें कि बुजुर्गाने दिन जो होते थे, जो लोग बड़े होते थे, उनका ख्याल बड़ा होता था। हम जैसे लोगों का ख्याल छोटा हो चुका है। बस दुनिया कमाना, दुनिया में कामयाबी हासिल करना, हम इस पे तरजीह देते रहे हैं। हमें आखिरत की कोई फिक्र नहीं है। हमें मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कल मैदान महशर में वहां हाजिर होने के बाद अपने मुंह को दिखाने के बारे में कोई फिक्र नहीं है। जरा देखें हज़रात, आज पूरी दुनिया में आला हजरत के नाम का खुतबा पढ़ा जाता है। आज पूरी दुनिया में लोग हुजूर आला हजरत के नाम का हवाला पेश करते हैं। आखिर वजह क्या है? हज़रात, एक बेटे का नाम है हजरत हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रजा खान, जिनके चेहरे का रंग इतना गोरा, आंखें इतनी खूबसूरत कि खूबसूरती को देखने के बाद गैर भी कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाए। दूसरे बेटे हजरत
मुफ्ती आज़म हिंद तकवे में बेमिसाल। अब हुजूर आला हजरत के दोनों बेटे का वाकया सुनिए। आज यहाँ हमारे हालात ये हो गए हैं, चूंकि मैं भी 4 साल से एक मदरसे का मुदरिस हूँ, अगर पढ़ाने के दरमियान किसी बच्चे को तंबीह के तौर पर उसके अंदर तरबियत पैदा करने के लिए अगर उस बच्चे के साथ ज्यादा डांट डपट और ज्यादा सख्ती के साथ पेश आया जाए तो वालिदैन की तरफ से ये मैसेज आते हैं कि हमारे बच्चों के साथ सख्ती न बरता जाए, हमारे बच्चों के साथ सख्त लहजे के साथ न पेश आया जाए। ये बेटा मेरे जिगर का टुकड़ा है, इन्हीं के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ, क्या आप अपने बच्चों को जो है अपने प्यार के जो है जाल में फंसा करके उसकी दिलो आखिरत क्यों तबाह कर रहे हैं? जरा देखें कि तरबियत जब लोग करते हैं अपने औलाद की, खुदा की कसम अल्लाह ताला उनके जिंदगी में जो है उनके बच्चों की जिंदगी में कितनी कामयाबी अता करता है। अब जरा देखें, हुजूर आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नूरी मियां ने कहा कि अहमद रजा हवेली में कुछ जानवर रखे हुए हैं, रात में जो है कुछ भेड़िया आकर के इन जानवरों को परेशान क्या करता है। अहमद रजा मैं ये चाहता हूँ कि आप जो है 2 कुत्ते का इंतजाम करें ताकि रात के वक्त इन जानवरों की वो देखभाली किया करें, रात के वक्त इनकी वो जो है इनके पीछे पहरा लगाए रहे, इनकी देखभाली किया करें। रात अब होना तो ये चाहिए कि हुजूर आला हजरत को नूरी मियां ने कहा कि 2 कुत्ते का इंतजाम किया जाए। अब हुजूर आला हजरत को ये चाहिए कि वो आते और 2 कुत्ते का इंतजाम करके हुजूर नूरी मियां के हवाले करते उन जानवरों के देखभाल के लिए, उन जानवरों के पहरादारी के लिए। लेकिन नहीं, हुजूर आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर आते हैं, अपने दोनों शहजादे को लेते हैं, हजरत अल्लामा हुज्जतुल इस्लाम हामिद रजा खान, हजरत अल्लामा हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद मुस्तफा रजा खान, दोनों बच्चे को लेने के बाद उनके गले में रस्सियां डालने के बाद हुजूर नूरी मियां के खिदमत में पेश करते हैं और कहते हैं, हुजूर ये मेरे दोनों बच्चे हैं, ये बच्चे आपके जानवर की देखभाली करेंगे और आपके जानवरों की पहरा करेंगे। हुजूर इन्हें आप कबूल फरमा लीजिए। खुदा की कसम हुजूर नूरी मियां ने जब हुजूर आला हजरत का ये अंदाज देखा तो हुजूर आला हजरत के सामने हुजूर नूरी मियां ने दुआ के हाथ उठाए कि ए अहमद रजा, जा मैं तुझे दुआ देता हूँ कि तू तो साहिबे इल्म व फज़्ल है ही है, तेरे इल्म का कोई कमाल नहीं है, लेकिन तेरे बच्चों को भी अल्लाह तेरे इल्म व फज़्ल की खैरात अता करेगा। अल्लाह ताला तुझे तो कामयाब किया ही है, अल्लाह तेरे दोनों बच्चे को भी कामयाब करेगा। खुदा की कसम तरबियत लेने और देने के शक्ल में जब उस बुजुर्गे कामिल की नजर जब जो है दोनों शहजादे में पड़ती है, आज यहाँ किसी के एक बच्चे कामयाब नहीं होते हैं, लेकिन खुदा की कसम हुजूर आला हजरत के दोनों शहजादे वक्त के वलीए कामिल बनते हैं। एक वलीए कामिल का नाम हजरत अल्लामा हामिद रजा खान हुज्जतुल इस्लाम है और दूसरे वलीए कामिल का नाम हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अल्लामा मुस्तफा रजा खान है। हज़रात, इसलिए हमें अपने इमाम की जिंदगी को पढ़ने की जरूरत है, बुजुर्गों की जिंदगी को पढ़ने की जरूरत है, ताकि हम इमाम और बुजुर्गों की जिंदगी को पढ़ करके, सहाबाए किराम की सीरत को पढ़ करके, मुस्तफा करीम की सीरत को पढ़ करके हम अपने बच्चों को जो है सही तरीके से तालीम से आरास्ता करें, दीनी तालीम से आरास्ता करें, उनके अंदर सीरत पैदा करें, ताकि ये हमारे बच्चे हर एतबार से दुनियावी प्लेटफार्म पर भी कामयाब हो जाए और उसकी आखिरत वाली जिंदगी भी आसान हो जाए। रात मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन हम जैसे लोग अपने बच्चों को जो है यानी हर तालीम के पीछे, दुनियावी तालीम के पीछे, उनको दुनियावी तालीम के हुसूल के लिए हमेशा जो है यानी आमादा तो रहते हैं, लेकिन उन बच्चों के अंदर दीनी तालीम की जो है कोशिश, दीनी तालीम दिलाने की कोशिश नहीं करते हैं। यही वजह है कि हम हर एतबार से अपने बच्चों को तरबियत देने के मामले में नाकाम और कोशिश है, नाकाम और बिल्कुल हम जो है नाकोशिश होते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए मेरे प्यारे, यही वजह है कि इस्लाम के इन जैसे इस्लाम के जो है इन जैसे जलसों के प्लेटफार्म से आप आने के बाद एक पैगाम लेकर के चलें कि अपने बच्चों को और अपने बच्चों को अगर दुनिया व आखिरत की कामयाबी दिलानी है तो अपने बच्चों को मुस्तफा जाने रहमत की दीन की तालीम सिखा दें, मुस्तफा जाने रहमत के किरदार की तालीम सिखा दें, ताकि वो बच्चा आपका कामयाब व कामरान होता नजर आए। यही वजह है कि मुस्तफा प्यारे इरशाद फरमाते हैं, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, कि तू अगर मुसलमान है और मुसलमान की गोद में पैदा हुआ है तो तेरे ऊपर नमाज बाद में फर्ज है, तेरे ऊपर रोजा बाद में फर्ज है, तेरे ऊपर हज बाद में फर्ज है, तेरे ऊपर ज़कात बाद में फर्ज है। या रसूल अल्लाह, सबसे
पहले क्या फर्ज है? हुजूर इरशाद फरमाते हैं तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिमिन व मुस्लिमा। इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर पहले फर्ज है। इसलिए हम अपने बच्चों के लिए इल्म दीन सिखाने के लिए सबसे पहले कोशिश करें। इंशाअल्लाह जब हमारा ये जज्बा होगा, हमारा जब ये इरादा होगा, हमारा जब ये मिशन होगा, तो हम हर एतबार से अपने बच्चों के जिंदगी के मामले में कामयाब व कामरान होते हुए नजर आएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है मौला ताला हम सब लोगों को यानी राह रास्त पर आने की तौफीक अता फरमाए। हम सब लोगों को अपने बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता करने की तौफीक अता फरमाए। इसलिए कि इशारा हो चुका है खतीबुल मुल्क, खतीब आज़म हिंदुस्तान, जिनको सुनने के लिए पूरा हिंदुस्तान यानी इंतजार करता है। मैं नहीं चाहता हूं कि अब उनकी मौजूदगी में मैं आपके बीच हाइल रह करके उनको आपके सामने ताखीर से पेश किया जाए। इसलिए मैं अपना सारा वक्त खतीब आज़म हिंदुस्तान मुफक्किर कौम मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना सैफुल्लाह अलीमी साहब की को देता हूं। इंशाअल्लाह मेरे बाद हज़रत भाई अरशद इकबाल साहब की हाजिरी होगी, फिर हज़रत का खिताब नायाब होगा। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। सब लोग कलमे इस्तिग़फ़ार पढ़ लें। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।